अब उस योग के अंदर एक छोटा सा पार्ट रहेगा which is actually a cell. वो लोग सिल्क के जो क्वालिटी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक माइक्रोस्कोप बनाया. For a long time, for almost 200 years, biology as a field ये प्रोग्रेस ही नहीं किया. What are the factors that affects rate of diffusion? ऐसे न्यूरॉन्स है जो हमारे फिंगर के टिप से लेके स्टार्ट करके स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है. दिस इज अ फंडामेंटल नोशन, सो वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप. ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. उस बॉडी में सेल आता कहाँ से? ঠিক আছে, সো সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ আমরা আজকে স্টার্ট করব. ফার্স্টে আমরা কিছু সেলের হিস্ট্রি দেখব, এরপর বেসিক জিনিসটা দেখব যে why cell is small. So first we'll go to the history of the cell and then why cell is small. So this is a fundamental notion, so we have to use microscope to observe cell. But why we cannot find cell on the side of a road, say this size cell is, so why we don't see some bigger cells? So you can argue with a concept like we have ostrich egg, such a big egg, or any kind of eggs, but egg जो है, egg as a whole is not a cell. egg में जो ऊपर का जो white वाला part है, this is extra cellular material, तो ये cell secrete कर रहा है, so the whole part is not a cell. उसके बाद egg में जो yolk वाला part है, that one is also not a cell. अब उस yolk के अंदर एक छोटा सा part रहेगा which is actually a cell. That means cell, the whole egg is not a cell. So before going to cell, first we need to have an objective. Today's objective is first discovery of cell, then why cell is small, then tools and techniques used to observe a cell, tools and techniques. Then we'll try to understand in tools we'll try to understand some few kind of microscopes. Then why cell adopt various shapes and then we'll try to understand cell theory. और सेल थ्योरी क्यों आया, मतलब सेल थ्योरी का जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड टेनेट है, वो क्यों आया. सो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है. सो व्हाट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. तो फर्स्ट क्लास में हम लोग ये सारी चीज देखेंगे. So first microscope was discovered by Ivanovsky. Ivanovsky is very late. Or Leeuwenhoek. Leeuwenhoek is close, but Leeuwenhoek was in 17th century. Robert Hooke और Leeuwenhoek both were during the same time. उससे भी बहुत पहले 16th century में around 1590s first microscope was discovered by Zacharias Janssen. So we'll see, first known compound microscope was discovered by Zacharias and Hans Janssen.
in at around 1590s. Then basic microscope of Leeuwenhoek. Then came the microscope of Robert Hooke. तो अगर माइक्रोस्कोप का हिस्ट्री देखें तो फर्स्ट एकदम बेसिक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप नेदरलैंड में दो साइंटिस्ट कह सकते हैं, जैकरियस एंड हैंस जेनसन, एक माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम बनाया था. बट द रीजन टू मेक दोज माइक्रोस्कोप वर प्योरली कमर्शियल. Like they wanted to know what is the quality of silk. So they had a business of silk fiber. तो सिल्क फाइबर रिलेटेड बिजनेस था और उसमें वो लोग सिल्क के जो क्वालिटी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक माइक्रोस्कोप बनाया. एंड दोज माइक्रोस्कोप वाज द फर्स्ट known compound microscope. Then we have this simple microscope. We can take that in one hand and observe anything. अब देखो रॉबर्ट हुक developed his own microscope. His own compound microscope. But another scientist named Anton van Leeuwenhoek almost at the same time developed his own simple microscope. What is the difference between simple microscope and compound microscope? क्या होगा डिफरेंस? सो एकदम बेसिक चीज है. कंपाउंड मीन्स हियर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. मोर देन वन लेंस शुड बी देयर. Simple means single lens. So it's almost kind of a magnifying glass. अगर एक ही लेंस से हम लोग देखेंगे then this is a simple microscope. Leeuwenhoek का जो माइक्रोस्कोप था that was a simple microscope. But we know Robert Hooke observed first cell. Zacharias Janssen उन्होंने भी माइक्रोस्कोप बनाया था बट दे कुडंट ऑब्जर्व एनी सेल, एटलीस्ट कोई लिविंग थिंग्स नहीं देखा. तो फर्स्ट सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट दैट सेल दैट ही ऑब्जर्व्ड वर नॉट लिविंग. दोज वर डेड सेल्स, डेड प्लांट सेल. फर्स्ट लिविंग सेल First living cells were observed by Leeuwenhoek. When Leeuwenhoek observed cell that was in a drop of pond water, तो Leeuwenhoek का माइक्रोस्कोप, we have seen this microscope. इस माइक्रोस्कोप में एक हैंडल है, एक कॉपर का एक प्लेट है और उस प्लेट में एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ पर उसने एक लेंस फिट किया इस पॉइंट पर. तो इतना छोटा सा लेंस और फिट करके इधर, तो एक्चुअली क्या है, इन दिस माइक्रोस्कोप एक ऐसा होल्डिंग स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में से मैं एक बेसिक पैटर्न दिखा रहा हूँ. इस स्ट्रक्चर में से एक नीडल निकला हुआ है. अब इस नीडल में अगर if we can place a small drop of water anyhow on that needle, तो needle में भी तो हम लोग drop place कर सकते हैं. Maybe not a big drop but small drop can be placed there.
So if a small drop of water is placed on the tip of that needle और उसी को एकदम आंखों के सामने लेके फिर देखता है, so if we observe that drop using our small lens from that side, और यहाँ पर एक नीडल है, नीडल में ड्रॉप प्लेस किया गया है, जो भी चीज़ हमें देखना है that thing must be very small that can be placed on the top of that needle. तो अगर उसमें प्लेस कर पाए then you can observe this. So that is simple microscope concept, and this was observed by Leeuwenhoek. So Leeuwenhoek observed first living cell, but how? In a drop of pond water. ठीक है? And after observing that water drop, he mentioned that there are lot of animals moving in a single drop. तो कह रहा है कि बहुत सारे animals एक जगह पर, कोई तैर रहा है, कोई some animals are just floating, someone is actively moving. So he concluded that there is a, so that's his conclusion, there is a small world of variety of microscopic animals so there is a small world of variety of microscopic animals. और उन्होंने इन सारे एनिमल्स जो भी कह रहे हैं, we know now that these are protozoa, bacteria, algae, not just animal, but Leeuwenhoek ने कहा कि these are animals. These small microscopic animals were named as animalcules. Animalcules. तो Leeuwenhoek ने animalcules एक टर्म दे दिया. Animalcules मतलब smallest animals in a drop of water. ठीक है? Now we know that those animalcules are those animalcules must be, अब किसी भी पॉन्ड वाटर, किसी भी वाटर बॉडी में जो भी ड्रॉप, मतलब किसी भी वाटर बॉडी से अगर हम लोग कलेक्ट करके ड्रॉप में देखते हैं, then there are at least two things in any water, in any ecosystem, in any pond ecosystem, river ecosystem, ocean ecosystem. So उसमें पानी में जो in case of any ecosystem there must be a producer, मतलब जो क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है. So because there should be a flow of energy in any kind of ecosystem. तो एक इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है, that energy flow goes through producer. और यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है? किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर क्या होगा? एल्गी. तो he must have observed first algae. अब एल्गी में डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग बाद में आएंगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, बट एल्गी जो भी फोटोसिंथेसिस कर पाता है, इनको हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन. Phytoplankton. So, whatever Leeuwenhoek observed, that must be some kind of phytoplanktons. Then, that could be protozoa. Protozoa हो सकता है. Protozoa are usually zooplankton.
तो वाटर बॉडीज में एकदम सरफेस में रहता है फाइटोप्लैंक्टन जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एंड फाइटोप्लैंक्टन्स के नीचे थोड़ा सा नीचे लेयर्स में रहते हैं प्रोटोजोआ और जूप्लैंक्टन. सो प्रोटोजोआ और एल्गी was first observed by Leeuwenhoek. Then he could have observed large bacteria as well. तो अगर बैक्टीरिया का साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो तो उसके माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा. तो बैक्टीरिया obviously large ones. Bacteria could be very small. Bacteria also can be very large. तो large bacteria भी है, small bacteria भी है. Large bacteria also maybe were in that animalcule group. তাহলে রবার্ট হুক কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ বানিয়েছে, লিওয়েনহক সিম্পল মাইক্রোস্কোপে দেখেছে, বাট সিম্পল মাইক্রোস্কোপেই অনেক কিছু দেখে নিয়েছে. Now when Robert Hooke observed this dead cell, first cell was observed by Robert Hooke. Those were dead cells, but what was the time? 18, 17, or no, 16. 1665. Now at 1665 में फर्स्ट सेल देख लिया था रॉबर्ट हुक ने, बट स्टिल for a long time, for almost 200 years, biology as a field ये प्रोग्रेस ही नहीं किया. ऐसा क्यों हो सकता है कि बहुत पहले सेल एटलीस्ट टर्म आ गया, बट फॉर नेक्स्ट 200 इयर्स बायोलॉजी एज ए फील्ड प्रोग्रेस ही नहीं किया. उसके बाद से प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया आफ्टर 1840s एंड ऑल. तो 200 इयर्स क्या कर रहे थे इतने लोग? अच्छा, first one question. Robert Hooke was a biologist, chemist, physicist, environmentalist. Robert Hooke was a physicist. So in class 11 only you'll study a chapter in something in elasticity. So Hooke's law of elasticity. So Robert Hooke provided some law in physics as well. That's Hooke's law of elasticity. So Robert Hooke was a physicist. So he just made his own microscope and he was trying to draw minute particles. So collection of his drawings of minute particles minute particles ये हो सकता है salt particle, sand particle, sugar cube. And published a book named Micrographia. Small means drawing, graphia means drawings, micro means small particle, drawing of small particles or drawing of small things. Micrographia. In that book, the term cell was used for the first time. First time for a biology thing. তো সেলের টার্মটা প্রথমবার ইউজ হচ্ছে মাইক্রোগ্রাফিয়া বইটার মধ্যে. So you can observe that book. Let's see this one. So with the help of some magnifying glass
and using his compound microscope, he published a book named Micrographia. And in that book, for the first time, in a slice of cork, अब cork क्या है? कुछ भी एक wooden means earlier there was no plastic lid or anything to cover any container. So even if you see any kind of homeopathy medicines also, there also you can find some wooden structures covering the containers, small containers. So earlier even large containers at home used to use this kind of cork. Now Robert Hooke formed some thin slices of a cork lid. Observed under his compound microscope, and there was no concept of staining or anything. अभी हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे उतना कुछ देख ही नहीं सकते without using stains. But that time, without using any stain or anything, under his compound microscope, he observed what this is called honeycomb appearance. एक honeycomb structure में इतना सारा छोटे छोटे chambers होते हैं. यहाँ पर भी all those chambers were called cellulae. Each small chambers को हम लोग cellulae from Latin. Okay, so this is an accidental term given to a biology topic. तो उसमें cell रख दिया हम लोगों ने. But so my question was like after 1665 or 1670 80s, then there was no more progression in biology, mainly because a very famous scientist started working on so many concepts. कौन थे वो scientist? वही 17th century में आया, आइजैक न्यूटन. अब न्यूटन ने इतने सारे फील्ड में इतना कुछ कर दिया कि फॉर नेक्स्ट 150 years everyone was focused on his work or related works in physics. So for next so many years, for 150 to 200 years, there were not very less people who were interested in studying any kind of cells or anything. ठीक है, तब इतना प्रोग्रेशन चल रहा था. Then we have another physicist named Robert Brown. Robert Brown is very famous. अच्छा, Robert Hooke is famous for his contribution in physics, Hooke's law. Then after almost 150 to 200 years, another scientist named Robert Brown
who is very famous for explaining movement of particles in any medium without input of external energy. तो एक मीडियम में जो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है विदाउट इनपुट ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी, उसको कहा गया उन्हीं के नाम पर ब्राउनियन मोशन. तो विदाउट इनपुट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी जो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, that is termed, this is a very fundamental physical phenomena called Brownian motion. और ये जो ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मोशन को फिजिक्स में प्रूव किया आइंस्टाइन ने. So Albert Einstein proved Brownian motion after almost 100 years, 70-80 years. Einstein proved Brownian motion. Brownian motion was given by Robert Brown. ठीक है. And Brownian motion is the basis of, सबने पढ़ा होगा, diffusion, movement of particles from high concentration to low concentration. This kind of diffusion क्यों होता है? Diffusion होता है Brownian motion की वजह से. Brownian motion is a very fundamental physical phenomenon. So Brownian motion is the basis of diffusion. So Robert Brown observed nucleus first in the cells of, in the root cells of onion. ठीक है. उसके बाद बहुत सारा साइंटिस्ट आएंगे, बट उससे पहले we'll go to some few other topics. Yeah, so we'll go to why cell is small. So somewhere in this chapter or in this unit you will find a concept which is called reductionist approach. So while studying biology, biologists take two kind of approach. One is if you study an animal, what an animal is doing, and if you study what a group of animal is doing, and then if you are just zooming out and studying what an ecosystem is doing, so many animals, what a community is doing, so two or more group of animals, what a ecosystem is doing. और अगर हम लोग स्पेस में चले जाए और ऊपर से देखें कि okay, what this biosphere is doing, how this is sustaining itself, this kind of approach जहाँ पर हम लोग zoom out कर रहे हैं, this kind of approach is called emergence approach. ठीक है. और अगर हम लोग zoom in करते हैं तो हम दूर से देखते हैं कि okay fine, there are so many animals, we want to see what one animal is doing, so we are going to that animal, we are taking that animal, and then फिर देखा कि okay, this animal is doing these things, what are the organs, why that animal is doing that thing. So हम लोग उसके organs को study कर रहे हैं या फिर organ system को study कर रहे हैं. उसके बाद organ भी क्यों ऐसे काम कर रहा है वो देखने के लिए we are studying the tissues. फिर tissues भी क्यों ऐसे काम कर रहे हैं वो देखने के लिए we are studying the cell. Cell भी क्यों ऐसे काम कर रहा है वो देखने के लिए हम लोग we are studying the biomolecule chapter. So biomolecules. This kind of approach is called reductionist approach. So there are two approach. Of studying biology. Here we have class 11 book is mainly reductionist approach, but in class 12
we'll see emergence approach as well. क्योंकि हार्ट सेल को देख के तुम कभी अगर तुम सारे हार्ट सेल को भी देख लेते, हार्ट सेल को देख के कभी ये बता नहीं पाते कि कैसे हार्ट काम कर रहा है, हाउ हार्ट इज पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड ऑल. तो ये एक हार्ट सेल को देख के कभी नहीं बता सकते. तो उसको स्टडी करने के लिए हमें इमर्जेंस मतलब जूम आउट करना है. और बहुत सारे, अगर एक सेल देख रहे हैं और सेल इज सिक्रेटिंग समथिंग, सेल इज एब्सॉर्बिंग समथिंग, वो क्यों कर रहा है उसको देखने के लिए वी हैव टू सी द मॉलिक्यूल्स, हाउ दोज मॉलिक्यूल्स आर परफॉर्मिंग. तो किसी टाइम पर ये अप्रोच सही रहता है, किसी टाइम पर ये अप्रोच सही रहता है. ठीक है. तो इकोलॉजी जब पढ़ते हैं सो वी आर गोइंग थ्रू इमर्जेंस अप्रोच. तो इमर्जेंस मीन्स उल्टा देखो, लाइक from cell to tissue to organ. Organ system and all. और अगर ऑपोजिट देखें से ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन में जा रहे हैं and all this, like we are going deep inside, then this is a reductionist approach. Fine. It's just a basic concept. So this is regarding approach. Now our question was why cell is small. So why a cell is so small that we need microscope to observe it? Why we cannot see a cell through naked eye? तो ये एक ऐसा naive question हो गया, but इसका बहुत deep answers है. First देखो, first you need to understand that cell is a thermodynamic system. अच्छा, फर्स्ट देखते सेल इज ए ऑर्डर स्ट्रक्चर. मैं थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज कर रहा हूं अभी. सेल इज ए ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर where all molecules are reacting in a particular manner. तो एक ऑर्डर स्ट्रक्चर है, वहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहा है पर्टिकुलर मैनर बट स्पॉन्टेनियसली. तो कोई एक्स्ट्रा इनपुट नहीं चाहिए सेल में. तो सेल का जो डेफिनेशन आ रहा है, सेल एक ऐसा ऑर्डर स्ट्रक्चर है जहाँ पर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स खुद से रिएक्ट कर रहा है. अब वो रिएक्शन, दिस रिएक्शन मतलब ऊपर से अगर देखें तो थर्मोडायनामिक्स में 2-3 लॉज है. यू विल स्टडी दिस. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज वेरी सिंपल. तो सब लोग आई थिंक क्लास 8-9 से जानते होंगे कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी transformed from one form to another. So this is the first law of thermodynamics. Second law of thermodynamics is that any order structure tends to be disordered with time. तो in universe कहीं पर भी
जो भी ऑर्डर स्ट्रक्चर है कॉन्स्टेंटली उसका टेंडेंसी होगा कि वो डिसऑर्डर हो. दिस मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी. तो आई एम जस्ट राइटिंग another concept, and this is measure of disorderness. Measure of disorderness, this concept comes from second law of thermodynamics, and this is called entropy. Entropy, and this is one of the most fundamental law. Fundamental law मतलब न्यूटन के जो लॉज है उससे भी ज़्यादा फंडामेंटल, मतलब ये हमेशा होगा. सो न्यूटन लॉज से भी ज़्यादा फंडामेंटल लॉज है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. और थर्मोडायनामिक्स के जो सेकेंड लॉ है उसमें आते हैं कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस. मतलब डिसऑर्डरनेस किसी भी सिस्टम में सिर्फ इंक्रीज करेगा. अब entropy of a system, if increasing, in this case, how a cell can remain ordered with time? So if a cell is ordered and all the molecules inside it are reacting in a particular manner, there must be some input of energy. तो cell कुछ ना कुछ एनर्जी यूज कर रहा है टू कीप इटसेल्फ ऑर्डर्ड. तो इसको ऐसे सोच लो कि देयर इज ए, सपोज मैंने एक टेबल पर 5 ऐसे मार्बल यूज करके, 5 नहीं छोड़ो 7 8, तो ऐसे 8 मार्बल्स यूज करके एक टेबल पर रख दिया. एंड आफ्टर 7 days आई केम हियर. मोस्ट प्रोबेबली ये सारे मार्बल्स एक जैसे रखा था वैसा तो नहीं रहेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी. मतलब वैसे ही नॉर्मल बाहर से अगर कोई ट्रक बस जा रहा है तो बिल्डिंग भी थोड़ा हिल रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा. अगर उसमें कुछ इस रूम पे कोई ना भी आए, बट स्टिल दोज मार्बल्स देयर इज हाई चांस कि वो वही जगह पर नहीं रहेगा विथ टाइम. सो ड्यू टू सो मेनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस कोई भी चीज़ उसका ऑर्डर यूजुअली मेंटेन नहीं करता. ऑर्डर अगर मेंटेन कर रहा है, अगर मैं 7 days 10 days बाद आके मैंने देखा कि अरे एकदम सेम जगह पर सब कुछ है, मोस्ट प्रोबेबली किसी ने उसको ठीक से रखा होगा. दैट मीन्स सम एक्सटर्नल इनपुट वाज गिवन. सो सिमिलरली, ये मैंने बहुत इजी वे में कह रहा हूँ, इट हैज सो मेनी इक्वेशंस एंड ऑल, तो इक्वेशन में नहीं जा रहा हूँ. सो इन एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस है. किसी भी सिस्टम में कॉन्स्टेंटली कोई भी सिस्टम ऑर्डर से डिसऑर्डर होता है. अब सेल ऑर्डर्ड है, क्यों? बिकॉज सेल इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग समथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो एक सेल इज कंटिन्यूअसली receiving external energy via बोलते पारो थ्रू न्यूट्रिएंट्स. जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी फूड है, फूड के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी से ही सेल, तो सेल को कॉन्स्टेंटली फूड चाहिए. वो फूड ही एनर्जी है. फूड में एक्चुअली फूड इज केमिकल एनर्जी. फूड में जो भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सपोज ग्लूकोज C6H12O6, तो ग्लूकोज में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स है, और ये कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उस बॉन्ड को अगर हम लोग किसी भी तरह ब्रेक कर पाए, देन वहाँ से बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो. और वही होता है रेस्पिरेशन चैप्टर में, हम लोग वही देखेंगे कि कैसे हमारे सेल में जो एंजाइम्स है, डिफरेंट सिस्टम है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा. और बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा तो एक ग्लूकोज से बहुत सारा एनर्जी निकल सकता है. सो
सेल इज कंटिन्यूअसली रिसीविंग एक्सटर्नल एनर्जी थ्रू न्यूट्रिएंट. अब न्यूट्रिएंट क्या हो सकता है? न्यूट्रिएंट कैन बी एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस. So there are variety of organic substance that acts as a nutrient. अब देखो, टू एब्जॉर्व और टू गेट न्यूट्रिएंट को सेल जाके तो लेके नहीं आएगा, न्यूट्रिएंट को खुद से सेल के अंदर आना है. अब न्यूट्रिएंट क्यों खुद आएगा सेल के अंदर? दैट कॉन्सेप्ट इज अगेन ब्राउनियन मोशन. तो इफ देयर आर लॉट ऑफ ग्लूकोज आउटसाइड, देन ऑब्वियसली फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ग्लूकोज विल गो टू लो कंसंट्रेशन व्हेरेवर देयर आर लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज को या फिर किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर बाहर ज्यादा है तो ही आएगा वो सेल के अंदर. सो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या? nutrients diffuse into the cell from their higher concentration, from their high concentration. अब देखो, न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज जो कर रहा है दैट इज अगेन लिमिटेड बाय, तो हमें पता रहना चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन. रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब फर्स्ट ये लिख लो कि डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. Diffusion is a slow process. That means rate of diffusion is directly proportional to rate of diffusion is directly proportional to the surface area through which the substance has to diffuse. तो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है वो उसको जितना ज़्यादा सरफेस मिलेगा उतना जल्दी डिफ्यूज़ कर पाएगा. अगर उसको कम सरफेस दिया गया तो कम डिफ्यूज़ होगा. बेसिक चीज़ यही है कि सपोज तुम्हारे पास एक साइड में बहुत ज़्यादा, सपोज दीज आर द पार्टिकल्स, ठीक है, ये इसी पार्टिकल्स को किस जगह पर जाना है, मतलब उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा. अगर मैंने उसको रास्ता ही नहीं दिया, अगर छोटा सा, सपोज दिस इज द स्मॉल, तो मैंने कहा कि मैंने कहा कि जस्ट इस जगह से जाना है, बाकी जगह से नहीं जा सकता. दैट मीन्स ये जो पार्टिकल्स है सबको ऐसे करके जाना होगा. So this will be very slow because the area through which it is diffusing वो कम है. तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होगा. अब हमारे सेल के प्रॉब्लम में आते हैं. एक सेल जब बड़ा हो रहा है, सेल का जो अंदर सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम बहुत जल्दी इंक्रीज करेगा. दिस फर्स्ट
Let's see this. The logistics of carrying out cellular metabolism sets limit on the size of cells. Surface area to volume ratio of a cell is critical. This is a very important statement. Because हमें पता है कि एरिया में हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर जो भी स्क्वायर में होगा, और क्यूब मतलब वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है. तो किसी भी वॉल्यूम सर्कल स्फीयर का वॉल्यूम देखो, स्फीयर का एरिया देखो, ठीक है, हमेशा रेडियस स्क्वायर और वहाँ पर रेडियस क्यूब. तो कोई भी चीज़ एनी सेल व्हेन इट्स साइज इज इंक्रीजिंग, उसका जो सरफेस एरिया है वो जस्ट एन स्क्वायर के फैक्टर में इंक्रीज करता है, बट उसका जो वॉल्यूम है वो एन क्यूब के फैक्टर में. तो बहुत ही जल्दी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्क्वायर सरफेस एरिया उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा. कुछ समझ में आ रहा है? इसको समझने के लिए एक क्यूब का कॉन्सेप्ट लेते हैं. दिस आई विल गिव, सो बाद में लिख सकते हो. सो आई एम जस्ट टेकिंग ए कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब. सपोज एक सेल है जो एक क्यूब की तरह है देखने में. अब इस क्यूबिकल सेल में अगर सारे साइड एक, तो एज इट इज क्यूब, सपोज दिस इज ए, तो उसका सरफेस एरिया जो होगा, और या फिर उसका जस्ट एरिया भी लिखो, एरिया क्या है 6 इंटू ए स्क्वायर, बट उसका जो वॉल्यूम होगा that would be a cube. Now if each side is very small, suppose A is just 1 centimeter or 1 millimeter. If A is 1 millimeter, then surface area is 6 square centimeter, square millimeter, and its volume is just 1 cubic millimeter. तो एरिया हो गया 6 और उसका वॉल्यूम हो गया 1. तो इसका सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है, दिस इज 6:1. और मैंने क्या कहा कि सेल नीड टू मेंटेन हाई सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो. सेल को हमेशा सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो हाई रखना है, मतलब एरिया ज्यादा वॉल्यूम कम. हाई सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो फॉर क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा रहने से अंदर अगर कम मटेरियल है तो मोर डिफ्यूजन होगा, और अंदर के जो मटेरियल्स को जो भी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, जो भी चाहिए, दैट कैन डिफ्यूज इनटू द सेल इजीली. सारी चीज इजीली डिफ्यूज कर पाएगा. बट देखो, तो क्या क्या कहा कि सेल नीड टू मेंटेन हाई सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो. व्हाई? फॉर बेटर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस. तो फिर से डिफ्यूजन में आ गया सब कुछ. तो कुछ भी सब्सटेंस अगर बाहर से अंदर जाएगा या फिर अंदर से भी बाहर जो आ रहा है, लाइक वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो सेल के अंदर रिएक्शन में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो फॉर्म होगा. वेस्ट अगर अंदर एक्यूमुलेट करेगा, देन देयर इज अगेन सम अदर प्रॉब्लम, बिकॉज दैट वुड बी टॉक्सिक. तो सारे चीज़ों को बाहर भी आना है. तो बाहर से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अंदर की तरफ जाना है, और अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर की तरफ आना है. तो बोथ साइड डिफ्यूजन इज नीडेड, और डिफ्यूजन कम हो जाएगा अगर सरफेस एरिया कम हो गया. तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेल को हमेशा अपने वॉल्यूम के मुकाबले सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा रखना है. बट अगर मैं जस्ट इसके एक साइड को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, सपोज इफ ए इज नाउ 2 मिलीमीटर, तो उसका एरिया क्या हुआ? एरिया देखो
6 इंटू 2 स्क्वायर मैंने 424 स्क्वायर मिलीमीटर, और वॉल्यूम क्या हो गया 8 2 क्यूब। तो एरिया इज टू वॉल्यूम क्या हुआ 3:1, हाफ हो गया पहले से। तो इतना फास्ट एरिया इज टू वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है कि सेल को सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो जितना उसका सेल का जितना साइज इंक्रीज करेगा, सपोज ए इज इक्वल टू 3, एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, फिर से 3 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 9, 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 27। A is to volume 2:1। तो सेल को उसके अंदर जो भी मटेरियल्स है उसको कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एनफ डिफ्यूजन, तो एरिया of a large cell decreases sharply as its size increases। ठीक है, अब इस सेल के पास भी एक देयर इज वन वे टू सर्वाइव। तो सेल बड़ा होके भी सर्वाइव कर पाएगा, उसके लिए सेल शेप का जो पेज नंबर है वो खोलो। तो इसमें देखो डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल। सेल बहुत बड़ा अगर हो गया, उसको क्या करना है, उसको बस अपना जो वॉल्यूम है उसको किसी भी तरह घटाना है। जैसे नर्व सेल इज वन ऑफ द बिगेस्ट, एक ऐसे न्यूरॉन्स है जो हमारे फिंगर के टिप से लेके स्टार्ट करके स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, इतना लॉन्ग सेल। तो सेल अपने आप को मतलब सेल बड़ा होके भी सरवाइव कर पाएगा, ओनली चांसेस इसको क्या करना है, अपने अंदर मटेरियल्स घटाना है। देखो ये बहुत फाइबर की तरह हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसके अंदर, तो उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसको घटाना है और इसको सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है। तो नर्व सेल इज ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, इट हैज एनी हाउ increased its surface area to volume ratio। तो नर्व सेल ये करके ब्रांच होके अपना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है उसको बहुत इंक्रीज कर लिया। ठीक है, सो यू कैन जस्ट राइट that nerve cell increased its surface area to volume ratio by forming thin and delicate branches। और जो सेल्स छोटे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देख लिया कि वाई सेल्स आर स्मॉल एंड वाई सेल्स यूजुअली फॉर्म ब्रांचेस व्हेन देयर साइज टेंड्स टू इंक्रीज। तो किसी का साइज जब इंक्रीज कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ ब्रांचेस आ जाता है। ठीक है, and this is the concept of multicellularity as well। तो अर्थ में जब फर्स्ट टाइम, अर्थ में बहुत सालों तक, फॉर ऑलमोस्ट 1 बिलियन ईयर्स अर्थ में
सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही थे। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हुआ, व्हाई वी कैन नॉट सी बिग एल्गीज, सॉरी बिग एमीबा, बिग पैरामीशियम, व्हाई दिस ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल ऑलवेज। तो जब भी ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा साइज बड़ा किया, वो तो अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ठीक नहीं रख पाया। तो उस टाइम पर देखो बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर ये सेल बहुत बड़ा हो जाए तो उसका सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो, और अगर उसके सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम कर दे तो उसको डिवीजन करके जस्ट 1.2 आ रहा है, अगर उसका जस्ट 5 यूनिट। बट अगर ये हर एक, ये जो पूरा पार्ट है ये अपने आप को ऐसे ब्रेक कर दे छोटे छोटे टुकड़ों में, और हर एक सेल का एक साइज 1 ही रहे, तो यहाँ पर उसका फिर से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया, बहुत इंक्रीज कर गया। दिस इज व्हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ऑन अर्थ। तो व्हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड, क्या होगा आंसर? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड when the sizes of unicellular organisms were increasing and they couldn't maintain their surface area to volume ratio, so they divided, and the divided cells were kept together. तो divided cells जब एक साथ रहेगा तो एक साथ बहुत कुछ शेयर कर पा रहा है, फिर भी हम लोग बाद में देखेंगे यूकैरियोट्स में। तो मल्टी सेलुलरिटी इज अगेन ए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो लाने के लिए मतलब एक सेल, एक बॉडी कॉन्स्टेंटली जस्ट बड़ा ना होके छोटे छोटे पार्ट में अगर बड़ा होता है, देन उसका सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो ठीक रख पाता है, और इससे उसमें अच्छे से डिफ्यूजन हो पाता है पूरे बॉडी में। एंड दिस वर्क्स, एंड दिस इज हाउ द सेल सर्वाइव्ड ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये चीज हम लोग अभी लिखेंगे। So area of a large cell decreases sharply as its size increases. Therefore, a cell must divide to keep its size smaller. Whenever there is growth, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि जब भी एक सेल में ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज्ड ग्रोथ, एक सेल जब ग्रो कर रहा है, तब सेल अगर ग्रो करता जाएगा, दैट मीन्स सेल खुद ही, मतलब सेल विल बिकम डेड। तो सेल अपने आप को बचाने के लिए जब भी सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल मस्ट डिवाइड, और जब डिवाइड कर लेगा फिर से वो छोटा हो जाएगा, और जब छोटा हो जाएगा तब उसके सरफेस एरिया इज टू रेशियो, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो फिर से ठीक हो जाएगा। तो सेल मस्ट डिवाइड टू कीप इट्स साइज स्मॉलर whenever there is growth. Therefore, multicellular organisms appeared on Earth when these small cells could stick to each other. तो डिवाइड करने के बाद अगर एक के साथ एक स्टिक करके रह जाए,
then this thing can become a multicellular organism. So this is a very deep concept to understand कि डिवीजन क्यों हो रहा है और सेल छोटा क्यों रह रहा है हमेशा. ठीक है. उसके बाद हम लोग आएंगे कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स. दिस इज बेसिक थिंग्स टू स्टडी सेल. बायोलॉजिस्ट यूज टू डिफरेंट थिंग. एक ओके फाइन माइक्रोस्कोप छोटे चीज़ों को देखने के लिए, बट सिर्फ माइक्रोस्कोप से बहुत कुछ हम लोग नहीं देख पाएंगे. सपोज गोल्गी बॉडी, सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ इतना डेलिकेट है, इसको देखने के लिए पहले उसके ऊपर कलर्ड कुछ चीज़ें डालना है. दैट मीन्स स्टेन. और स्टेन डालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ some chemical substance, so biochemistry. So using biochemistry and microscope we can easily study cells. ठीक है. तो biochemistry की मदद से we did stains, easy thing. We'll just go now. We have seen that microscopes can be light, electron. तो लाइट माइक्रोस्कोप. अब लाइट माइक्रोस्कोप में बहुत वैरायटी ऑफ माइक्रोस्कोप्स हैं लाइट में, क्योंकि लाइट वो नहीं है जस्ट जो विजिबल है. दिस इज नॉट जस्ट लाइट. यूवी इज ऑल्सो ए लाइट जो विजिबल नहीं है. इंफ्रारेड इज ऑल्सो ए लाइट, वो भी विजिबल नहीं है. तो लाइट माइक्रोस्कोप बहुत मतलब बहुत बड़ा रेंज. इफ वी यूज यूवी रे टू ऑब्जर्व सम सेल, देन दिस इज ऑल्सो ए लाइट माइक्रोस्कोप. तो लाइट माइक्रोस्कोप जैसे 5000 का भी माइक्रोस्कोप हो सकता है एंड 2 करोड़ का भी माइक्रोस्कोप हो सकता है. जस्ट लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है. जस्ट व्हाट काइंड ऑफ लाइट वी आर यूजिंग. अब लाइट माइक्रोस्कोप में यूजुअली हम लोगों ने जो देखा है कि लीवेनहॉक ने यूज किया था एक सिंपल माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक ने यूज किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है. अब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ लाइट there can be different types of microscope. Like bright field microscope, phase contrast microscope, confocal microscope, there are many other type of. So examples of different kind of compound microscope. Compound microscopy. Electron microscope was discovered by Knoll and Ruska. So two scientists named Knoll and Ruska discovered electron microscope. Now in electron microscope we are not using any light at all. So beam of electron targeted with the help of magnet
माइक्रोस्कोप के अंदर एमआरआई मशीन की तरह मैग्नेट रहेगा। ठीक है। नाउ the beam of electron targeted with the help of two magnets, and then there can be two different types, मतलब broadly two different types of electron microscope। एक हो गया TEM, transmission electron microscope, transmission, तो इसको कह रहे हैं TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और एक हो गया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये न्यूक्लियस गोल है, ये गोल्गी बॉडी में कॉनकेव सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, जो भी सरफेस देख रहे हैं, जो भी 3 डायमेंशनल कुछ चीजें देख रहे हैं, देन दिस इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस 3D इमेज। सो 3D इमेज देखने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, 2 डायमेंशनल इमेज देखने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ these are just 3 terms। এই টার্মগুলোর ব্যাপারে বেসিক আইডিয়া আমাদের থাকতে লাগবে সবসময়, শুধু এই চ্যাপ্টারে না, অন্য চ্যাপ্টারেও। ওয়ান টার্ম ইজ ম্যাগনিফিকেশন, अदर इज रेजोल्यूशन, अदर इज कॉन्ट्रास्ट। तो किसी भी माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन एक चीज है, जिस लेंस से द लेंस विच वी आर यूजिंग एंड द आई पीस वी आर यूजिंग, उसको हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और इसमें जिस आई पीस से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि 10x इसमें कुछ है। 10x मतलब सिर्फ अगर ये लेंस यूज करते तो भी एक ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है उसका साइज। सो दिस इज 10x। बट मैग्निफिकेशन सिर्फ आंखों के लेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके नीचे जो लेंस, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसमें एक मैग्निफिकेशन है। सपोज 40, 100, तो अगर इसमें 40 है और इसमें 10 है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू। दैट मीन्स आई कैन ऑब्जर्व 400 टाइम्स लार्जर दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। और इसमें 100 अगर है और यहाँ पर 10 है, दैट मीन्स 1000 टाइम्स लार्जर। तो 1000 टाइम्स लार्जर देख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन क्या है, एक लेंस, आई विल जस्ट राइट इट बिफोर seeing the parts of microscope। so eyepiece में जो मैग्निफिकेशन है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन है। so we have two lens because this is a compound microscope। एक लेंस आंखों से जो देख रहे हैं वो लेंस, और दूसरा लेंस जो एकदम स्पेसिमेन के सामने है दूसरा लेंस, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैग्निफिकेशन निकलेगा, this is our final magnification। ठीक है। अब बहुत जगह पर मैग्निफिकेशन अच्छा है, बट बहुत क्लियरली 2 पॉइंट के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा। दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो किसी भी माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए। रेजोल्यूशन मीन्स दो पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो मिनिमम डिस्टेंस क्या रहना चाहिए। वो मिनिमम डिस्टेंस नैनोमीटर में हो सकता है, वो मिनिमम डिस्टेंस पिकोमीटर में हो सकता है, मिनिमम डिस्टेंस माइक्रोमीटर में हो सकता है।
बट माइक्रोमीटर में होने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एक सेल यूजुअली छोटे छोटे जो सेल्स है वो माइक्रोमीटर रेंज पर ही है. दैट मीन्स तो फिर हम दो सेल्स के बीच में ही डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे अगर मेरा रिजोल्यूशन माइक्रोमीटर में है. तो रेजोल्यूशन बेस्ट होगा अगर हमारा रेजोल्यूशन नैनोमीटर में है. तो नैनोमीटर में अगर रेजोल्यूशन है तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. तो दैट्स रेजोल्यूशन. एंड अनदर इज कॉन्ट्रास्ट. अगर सब कुछ एक ही तरह दिख रहा है, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सा न्यूक्लियस है, कौन सा गोल्गी बॉडी है, क्या है. सब एक ही दिख रहा है पूरा. तो माइक्रोस्कोप में ये तीन टर्म, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन एंड कॉन्ट्रास्ट, इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी एक बेसिक चीज देख लेते हैं कि नॉर्मली ह्यूमन हाइट 1 पॉइंट समथिंग रहता है या फिर 2, मतलब 1.5 तो इसमें है. अब देखो मोस्ट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ये 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के रेंज पर है. और सेल के अंदर जो चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के अंदर है. तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो पाया जाता है, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वो सब 1 से 10 माइक्रोमीटर के अंदर रहेगा. और बड़ा सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स 10 से 100 माइक्रोमीटर के अंदर रहता है. बैक्टीरिया भी, एक बैक्टीरिया हमारे सेल के मुकाबले 10 टाइम्स स्मॉलर है, 10 टाइम्स स्मॉलर. ठीक है. अब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अगर जाएंगे तो नैनोमीटर के रेंज पे आ रहा है. वायरस बहुत छोटा, फिर राइबोसोम्स, फिर प्रोटीन्स, फिर लिपिड्स, मॉलिक्यूल्स, ये तो हम लोग नहीं देख पाते. मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी इतना अच्छा नहीं है कि वी कैन ऑब्जर्व दिस थिंग्स बिलो 1 नैनोमीटर. वो डिफरेंट टॉपिक हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी एंड ऑल. तो इसके ऊपर से यूजुअली माइक्रोमीटर वाले जो रेंज है, मेनली बायोलॉजिस्ट इसी रेंज पे काम करते हैं. ठीक है. विल जस्ट गो एंड सो हमारा टूल्स में क्या था. टूल्स में हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें देखा. माइक्रोस्कोप, और दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें जस्ट याद रखना है. लाइट माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स. लाइट माइक्रोस्कोप तो फर्स्ट स्लाइड में ही देखा, जैकरियस जेनसन, वो उन्होंने डिस्कवर किया था 1590s में. बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बाद में 1950s अराउंड डिस्कवर हुआ. 1950s तो बहुत लेट डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. फाइन. अब आ गया, ये हो गया कुछ टूल्स. नाउ लेट्स गो टू सम काइंड ऑफ सम टेक्निक. एकदम सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक में एक टेक्निक है सेल फ्रैक्शनेशन. सेल फ्रैक्शनेशन. सेल फ्रैक्शनेशन से हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को देख सकते हैं. तो अगर तुम्हें लगता है कि कैसे एक ऑर्गेनेल के बारे में हमें पता है, दिस इज ड्यू टू दिस टेक्निक. कैसे माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करेंगे, कैसे राइबोसोम को स्टडी करेंगे, दिस इज ड्यू टू दिस टेक्निक. तो इसी टेक्निक से सारे ऑर्गेनेल स्टडी किया जाता है. तो ये टेक्निक में क्या होता है, सेल्स को हम लोग, सेल्स, इट टेक्स सेल्स अपार्ट and separates organelles from one another. So you don't have to write all these things, you can just write this 2 point. First 2 point कि सेल फ्रैक्शनेशन सेल्स में से ऑर्गेनेल स्टडी करने में हेल्पफुल है. ठीक है. अब सेल फ्रैक्शनेशन का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं. अब देखो, एक टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे सेल्स को लिया गया, मतलब या फिर एक टिश्यू को लिया गया. टिश्यू को लेने के बाद एक मशीन में, इसको हम लोग कहते हैं होमोजेनाइजेशन, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मिक्सचर मशीन. तो यहाँ पर डाल के पूरा सेल का ऐसा कुछ जूस बनाया तुम लोगों ने. This juice is now called homogenate. तो सेल
सेल को पूरा ब्रेक करके ये हो गया हमारा सेल होमोजिनेट। अब सेल होमोजिनेट को कुछ मशीन है जिसको हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कह रहे हैं, बहुत फास्ट सेंट्रीफ्यूगेशन करते, तो उसमें इस एक टेस्ट ट्यूब को डाल के फिर ये बहुत स्पीड में घूमेगा। कितना स्पीड, कितना फोर्स लगा रहा है देखो, नॉर्मल जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसके 1000 टाइम्स। तो ग्रेविटी का जो भी फोर्स है उसको हम लोग 9.8 मीटर पर स्क्वायर कह रहे हैं, उससे भी 1000 टाइम्स ज़्यादा। इस स्पीड में जब हम लोग घुमाएंगे इसको तब क्या होगा, फर्स्ट एकदम नीचे जो भी मटेरियल्स जाके एकदम फिक्स हो जाएगा एकदम नीचे। यूजुअली इस स्पीड में जो मटेरियल्स नीचे जाएगा, दिस इज न्यूक्लियाई, मेनली सेल के जो न्यूक्लियस है वो सब नीचे चला जाएगा। फिर भी बहुत सेल में जो बहुत लाइट ऑर्गेनेल्स है, लाइटर ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जो मेम्ब्रेन पार्टिकल्स है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब फिर भी ऊपर ही रहेगा। तो नीचे जाके सबसे ज़्यादा वेट जिसका था वो जाके नीचे अटैच हो गया, दिस इज न्यूक्लियाई जाके अटैच हुआ। देन अगर फॉर 20 मिनट 20,000 ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी से हम इसको घुमाते हैं, तब जाके हमें क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये सब मिलेगा अलग से नीचे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली सेल को फ्रैक्शनेट कर रहे हैं, सेल को डिवाइड करके एक एक पार्ट अलग से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या किया, पूरा सेल का जो होमोजिनेट है उसको लेके 1000 ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में उसको घुमाया। उसके बाद इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, जो फ्लूइड है, उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ बाकी है नीचे के जो न्यूक्लियस है। तो उसको हम लोग अब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे न्यूक्लियस कैसे दिखता है। तो वैसे हम लोग न्यूक्लियस स्टडी करेंगे। तो ऊपर वाला जो फ्लूइड वाला पोर्शन था उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लिया, अब दूसरे टेस्ट ट्यूब को फिर से घुमाया, अब 20,000 ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से घुमाया फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद फिर नीचे जो पोर्शन बचा हुआ रहेगा, ऊपर वाला पार्ट फिर से तीसरे टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और नीचे जो पार्ट बचा हुआ है उसमें हम लोग पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट्स। फिर इसके ऊपर वाला जो फ्लूइड है उसको तीसरे जो टेस्ट ट्यूब में लिया था, इसको अगर 60 मिनट्स तक 80,000 जी में 80,000 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी में घुमाए, तब जाके नीचे हमें जो मिलेगा दैट इज एक्चुअली माइक्रोसोम। मतलब गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी मेम्ब्रेन्स है सेल के अंदर, जो भी मेम्ब्रेन्स है वो मेम्ब्रेन्स इतने फोर्स में तो ठीक तो नहीं रहेगा, सब ऐसे पूरा डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। सो ये डिसइंटीग्रेटेड पार्ट, सारे मेम्ब्रेन के जो पीसेस है उसको हम लोग कह रहे हैं माइक्रोसोम। तो यहाँ पर सिर्फ माइक्रोसोम्स मिलेंगे, और बाकी ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें सेल का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, सेल का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है राइबोसोम। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ये इसको राइबोसोम को स्टडी करने के लिए 1,50,000 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको 3 घंटा घुमाने के बाद हमें नीचे मिल रहा है राइबोसोम्स। सो दिस इज ए प्रोसेस कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन जो भी तुम लोगों ने लिखा है, सेल फ्रैक्शनेशन में we use first point is homogenization. होमोजेनाइजेशन में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, cell structure to form homogenate। ठीक है, दिस इज
फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें क्या करेंगे? with varying force test tubes are centrifuged। डायरेक्ट लेके रोटेटेड। ठीक है, ये टर्म आई थिंक एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। So with varying force, test tubes are centrifuged for a particular time period। तो बार बार एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 60 मिनट, फिर 3 आवर। सो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम लोग वेरिंग फोर्स से टेस्ट ट्यूब को लेकर ये सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। अब टाइम थोड़ा सा कुछ अगर हम लोग जस्ट एज ए रेफरेंस लिख ले कि 1000 gravitational acceleration for 10 minutes we are getting nucleus, so directly 20,000 G for 20 minutes we are getting mitochondria and plastid। mitochondria and plastid। और एकदम लास्ट में देखते हैं 1,50,000 times of G for 3 hours we are getting ribosome। और एंड व्हाट इज माइक्रोसोम, बस ये लिख सकते हो अलग से कि माइक्रोसोम आर पीसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एनी इंटरनल मेम्ब्रेन लाइक गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब सेल को फ्रैक्शनेट भी कर लिया। नाउ अनदर टर्म विच इज सेल थ्योरी। कैसे आया? हाउ सेल थ्योरी ओरिजिनेटेड। ठीक है, हाउ सेल थ्योरी ओरिजिनेटेड। सो सेल थ्योरी की वजह से अभी सेल डिफाइन हुआ, नहीं तो देयर वुड बी नो डेफिनेशन ऑफ सेल। फर्स्ट सेल थ्योरी व्हिच इन व्हिच ईयर? 1838। So 1838 and 1839, these two time frame is very important। उस टाइम पर 2 साइंटिस्ट दोनों एक ही प्रोफेसर के अंडर पे PhD कर रहा था। So when they are students 22-23 years old, these 2 students while studying in Germany, वो लोग ये सेल मतलब दोनों क्या देखा कि ऑलरेडी 2 मतलब 4, 5, 6 ऐसे करते करते 50, 60 डिफरेंट स्पेसिमेन में सेल्स ऑब्जर्व कर रहे थे। बट उनके दिमाग में ये था कि ओके सेल कुड बी द समथिंग वेरी बिग, सो वो लोग कुछ बड़ा डिस्कवर करेगा। बट उस टाइम पर जो भी मतलब पूरा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज चल रहे थे जिसको डिबंक करने के लिए बहुत सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा। ठीक है, क्या थ्योरी चल रहा था वो हम लोग देखेंगे बाद में।
तो फर्स्ट एक साइंटिस्ट जो 1838 में, उसका नाम है, who was a botanist, हम लोग कह रहे वो जर्मनी से ही था, सो जर्मन बोटेनिस्ट, सो M.J. Scladen. So Matthias Jacob Scladen, और एक ब्रिटिश zoologist named Theodore Schwann. So Scladen was a botanist, Swan was a zoologist. Scladen studied many, like more than 300 plant specimens. मतलब 300 से ज़्यादा प्लांट स्पीसीज के, डिफरेंट स्पीसीज के स्पेसिमेन को स्टडी करके ऑब्जर्व्ड ए सिमिलर पैटर्न. एंड द पैटर्न क्या था कि सब में वही रॉबर्ट हुक वाला क्या है, प्रॉपर बाउंड्री है. तो सेल वॉल एंड सेलुलर अरेंजमेंट, देखो सेल वॉल डिस्कवरी और उसके साथ साथ सेलुलर अरेंजमेंट, मतलब न्यूक्लियस रहना, उसके साथ बाकी ऑर्गेनेल्स रहना. तो सेल वॉल एंड सेलुलर अरेंजमेंट इज कॉमन टू ऑल. इसका मतलब दिस मस्ट बी फंडामेंटल, दिस मस्ट बी ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी. ठीक है. और इसके साथ उन्होंने फिर डिस्कस किया विथ स्वान के साथ डिस्कस किया कि देखो तुम जो भी स्पेसिमेन स्टडी कर रहे हो उसमें क्या कुछ ऐसा मिलता है क्या. बट एनिमल सेल में वो मिलना बहुत टफ है, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं है. सेल वॉल ऑब्जर्व करना बहुत इजी है, क्योंकि प्लांट सेल्स का साइज भी ज़्यादा होता है और वॉल इतना थिक है, तो बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते. बट एनिमल में वो ऑब्जर्व ठीक से नहीं होता, बिकॉज दिस इज नॉट, कि कोई भी एनिमल सेल जब भी देखोगे इतना इजीली तुम लोग उसके मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि मेम्ब्रेन्स हमेशा इंटैक्ट नहीं रहता. मेम्ब्रेन्स मोस्ट ऑफ द टाइम मेम्ब्रेन्स जब भी स्लाइड के नीचे हम लोग कुछ ना कुछ स्पेसिमेन बनाते हैं, मेम्ब्रेन्स टूट जाता है, मेम्ब्रेन्स में डिसरप्शन आ जाता है. So this British zoologist Swan also studied more than 200 specimens. Many animal specimens, and discovered something called सेल मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, तो सेल मेम्ब्रेन टर्म और सेल वॉल टर्म, जो किसी में वॉल है किसी में मेम्ब्रेन है, वो एक्चुअली स्वान ने दिया. तो अगर तुम लोग ठीक से ये पेज नंबर्स 88 में देखोगे, पेज नंबर 88 starts with a statement
that Swan, 1839, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. तो cell membrane Swan ने दिया. He also concluded based on his study on plant tissues, although Swan was not a botanist, but Swan ने ही क्या term दिया? The term cell wall. Sladen was observing cell wall, but नाम जो है cell wall और cell membrane, ये दोनों नाम किसने दिया? Swan ने बाद में. So he said the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. The presence of cell wall is a unique character of plant cell. ये भी Swan ने ही दिया. तो Swan discovered cell membrane and found cells are common in all the animal specimen. तो सारे एनिमल स्पेसिमेंस में सेल यहाँ पर भी कॉमन है. तो अब वहाँ पर भी सेल कॉमन है, यहाँ पर भी सेल कॉमन है. अब 1839 को दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक थ्योरी दिया. अब देखो थ्योरी और हाइपोथेसिस में बहुत डिफरेंस. व्हाट इज हाइपोथेसिस? हम लोग अगर कोई भी स्टेटमेंट दे दे, 4-5 बार ऑब्जर्व किया, ठीक है, तुमने 4-5 बार ऑब्जर्व किया एक एनिमल को, देख रहे हो कि अरे ये एनिमल तो बार बार घास खा रहा है. तुमने कहा कि ओके, माय हाइपोथेसिस इज दिस टाइप ऑफ एनिमल ईट्स ग्रासेस. ठीक है. फिर बाद में तुमने किसी ने उसको थोड़ा सा चिकन दे के देखा और उसने खा लिया वो चिकन. दैट मीन्स योर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग. दैट एनिमल, तो वो एनिमल अभी हार्बिवोर या फिर ऐसा कुछ नहीं रहा. दैट मीन्स वो है हाइपोथेसिस. एंड व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी है जब बार बार रिगोरस स्टडी करके इसका पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ सारे साइड देख के बार बार स्टडी करके जब सेम रिजल्ट आता है तब फॉर्मेशन होता है थ्योरी. ठीक है. सो सेल थ्योरी के फॉर्मेट में जब आया, दे हैव टू फॉर्मुलेट. तो ये है प्रिमिटिव थ्योरी. अभी भी रुडोल्फ वार्को नाम का जो साइंटिस्ट है अभी भी आया ही नहीं सीन में. ये 1839 में है. रुडोल्फ वार्काउ सेल थ्योरी में आके ऐड हुआ 1855 में. तो और 15 इयर्स बाद, तो 15 इयर्स पहले इन दोनों ने मिलके एक सेल थ्योरी दे दिया. और सेल थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स है, जो स्टेटमेंट्स है, इसको हम लोग कहते हैं टेनेट्स. टेनेट्स ऑफ सेल थ्योरी. अब देखो, स्वान जब एनिमल सेल्स देख रहा था, स्वान ने ऑब्जर्व किया कि एनिमल सेल में बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें हैं. लाइक इफ यू ऑब्जर्व बोन, तो हड्डियों में देखेंगे तो सेल बहुत कम है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है. तो एक बोन में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सेल ही नहीं है, कोलाजन फाइबर्स एंड ऑल दिस थिंग्स. सो स्वान ने क्या कहा कि cells are common in the animal specimen, but animal cell has more and more cell products. तो अभी इस थ्योरी में देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज all living organism are composed of cells and their product. देखो सिर्फ सेल नहीं, सेल का जो प्रोडक्ट है, सपोज हमारा नेल जो है, तो नेल इसमें क्या है, कौन सा प्रोटीन है? कैराटीन. नेल में, ठीक है. हेयर में कैराटीन. अभी अगर कैराटीन ही है, ये कैराटीन कौन सीक्रेट कर रहा है? सेल्स सीक्रेट कर रहे हैं. दैट मीन्स यहाँ पर सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ आइदर सेल, और सेल से ही बना हुआ कुछ ना कुछ उसका प्रोडक्ट. मे बी कैराटीन इज अ प्रोडक्ट. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट. एंड देन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
living beings. लिविंग बीइंग्स और लाइफ. ठीक है. तो इस थ्योरी में प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी बाकी साइंटिस्ट पूछने लगे कि ठीक है सेल ओके फाइन, सबके अंदर सेल है, सब कुछ है, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, बट उस बॉडी में सेल आता कहाँ से? सेल क्या ऐसे हवा में आके तुम्हारे बॉडी में आके आ सकता है? या फिर बॉडी में जो इतना सारा सेल है, ये सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे सेल्स एक ही जगह से आ रहे हैं, सबके दिमाग में वो था, बट दे हैव टू प्रूव समथिंग. वो प्रूफ करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर 2000 साल से एरिस्टोटल के वक्त से, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल के टाइम से एक चीज चल रहा था, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. व्हाट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन? देखो, so before 17th century people believed that living things could come from non-living things. तब सेल थ्योरी नहीं था, तो वो कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर था. सपोज एरिस्टोटल किसी एक रिवर के सामने जाके, बिकॉज उस टाइम पे तो कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ करता था, दे वर एक्चुअली फिलोसोफर्स. तो फिलोसोफर्स जस्ट सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे. तो एरिस्टोटल भी बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, सडनली देखा कि अरे एक मिट्टी से एक फ्रॉग निकल के जा रहा है, और उसे लगा अरे ये फ्रॉग शायद मिट्टी से ही हुआ, और उसने ऐसे लिख भी दिया बहुत पहले कि फ्रॉग कुड अराइज फ्रॉम मड. तो ये वो फिलोसोफर्स. तो अभी देखो एरिस्टोटल, उसके बाद हिपोक्रेट्स, उसके बाद जो भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, उनके सारे डिसिपल्स पूरे वर्ल्ड में सारे उनके ही डिसिपल्स हैं. तब दैट्स व्हाई 17th सेंचुरी तक सब लोग यही मानते थे कि वो उन्होंने जो लिख के गया वही सही है. ठीक है. तो लाइक किसी भी जगह पर रॉटिंग मीट या फिर कुछ है तो वहाँ पर मैगोट्स मिल जाता है, तो लोगों को लगा कि मैगोट्स वहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है. सपोज तुम्हारे पास कुछ एक फ्रूट, मतलब सपोज देयर इज ए राइपेंड फ्रूट इन योर टेबल, और तुम्हारा घर पूरा साफ है, सब ठीक है, बट वहाँ पर किसी ना किसी जगह से छोटे छोटे वो क्या कहते हैं फ्रूट फ्लाइज आ जाते हैं. बहुत पहले लोगों को लगा कि ये फ्रूट फ्लाइज वहाँ से ही होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. ठीक है. अब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव करने के लिए, जब डिसप्रूव हुआ, डिसप्रूव करने के लिए वी हैव दिस लुई पास्चर टेस्ट. लुईस पास्चर ने क्या किया? लुईस पास्चर को उसने ऐसा एक फ्लास्क बनाया, इसको कहते हैं स्वान नेक फ्लास्क. क्या हुआ सोचो, एक फ्लास्क में सपोज एक कुछ सूप ले लेते हैं और उस सूप को ओपन रख देते हैं, तो विद इन 2-3 days वहाँ पर बहुत बैक्टीरिया आ जाएगा, क्योंकि वो ओपन में है. ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन ब्रोथ. तो अगर नॉर्मल एक फ्लास्क में हम लोग कुछ ब्रोथ मीन्स एक न्यूट्रिएंट रिच एक सूप कह सकते हो, तो अगर सूप रख दे तो वहाँ पर बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएगा. अब पास्चर व्हाई ही इज फेमस? लुईस पास्चर, पास्चराइजेशन. पास्चर ने क्या किया, एक ऐसे ही एक फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क को पहले स्टेराइल बनाने के लिए, ताकि कोई ऑर्गेनिज्म ना रहे, उसको सारे ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए उसको पहले हीट किया. ठीक है. अभी ये पूरा मतलब दिस ब्रोथ इज डिवॉइड ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब इसको रख दिया विद द हेल्प ऑफ ए सच नेक. दिस इज कॉल्ड स्वान नेक. तो एक ऐसा फ्लास्क बनाया जिस फ्लास्क के ऊपर एक ऐसा एस शेप्ड का नेक है. ऐसे जब वो 7 दिन तक उसको ऐसे रहने दिया,
फिर बाद में आके यहाँ पर टेस्ट किया माइक्रोस्कोप के नीचे, स्टिल देयर वाज नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? अगर ये स्ट्रेट होता तो डायरेक्ट गिर जाता कुछ ना कुछ। ये ऐसे कार्व रहने से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आएगा तो ऐसे इतना टान लेके ऐसे करके ऐसे जाना उसके लिए बहुत टफ है। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हवा से आते भी है, इट विल बी सेटल्ड हियर। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ मिलेगा बट ग्रोथ में नहीं मिला। बट अगर कोई स्ट्रेट पाइप से कोई भी कार्व्ड नेक ना रहे, उसका अगर ऐसे रख दे तो 2 दिन में बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते। तो ये भी उसको प्रूफ करना पड़ा लोगों को दिखाने के लिए, जो देखो वो लोग गलत थे, मतलब दोज ग्रेट फिलोसोफर्स वर रॉन्ग। तो वो नहीं, तो ये प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल इसको भी प्रूफ करना पड़ा। ठीक है, जब ये प्रूफ हुआ कि ओके स्पॉन्टेनियस जनरेशन डज नॉट होल्ड इन साइंटिफिक कम्युनिटी, तब जाके आया है कौन, हमारा थर्ड टेनेट रुडोल्फ वर्काउ। सन 1855 पे थर्ड स्टेटमेंट ऐड हुआ और स्टेटमेंट को लैटिन में कह दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो मैं भी दे सकता था। ठीक है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। All cells arise from pre-existing cell. This is a very simple statement, but ये statement क्या indicate करता है कि cells can divide. Cell division का concept दे दिया था किसने? रुडोल्फ वर्काउ ने। It indicates, ये directly लिखा नहीं रहेगा, but it indicates cells can divide. तो cell division को first time एक्सप्लोर किया रुडोल्फ वर्काउ ने। ठीक है, तो ये करने के लिए पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूफ करना जरूरी था। जब स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूफ कर दिया लुइस पास्चर ने, तब जाके रुडोल्फ वर्काउ ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला दे दिया। तब जाके सेल थ्योरी कंप्लीट हुआ कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं, कभी ना कभी एक ही सेल से आया है, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो पूरा बॉडी में जितने सेल्स हैं, अल्टीमेटली ऑल दिस सेल्स एरोज फ्रॉम सिंगल सेल। अब क्वेश्चन वो आ जाएगा कि तो फिर फर्स्ट सेल कैसे आया अर्थ में, तो उसके लिए अलग चैप्टर है इवोल्यूशन, वो बाद में देखेंगे फर्स्ट सेल कैसे आया। तो आज इतने रहने थे, चलो।